جس آئے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے یہ وہ آئے کریمہ ہے جس میں خالق کائنات براہ راست ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کہہ دیا کہ رسول ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس طریقے سے رسول اٹھیں ویسے اٹھو، جس طریقے سے رسول بیٹھیں ویسے بیٹھو، جس طریقے سے رسول چلے ویسے چلو، جس طریقے سے رسول سوئیں ویسے سو. توجہ کریے گا عزیزو، جیسے میرا رسول چلے ویسے چلو، جیسے رسول اٹھیں ویسے اٹھو، جیسے رسول سوئیں ویسے سو، جیسے رسول بیٹھیں ویسے بیٹھو، جیسے رسول کھائیں ویسے کھاؤ، جیسے رسول پیئیں ویسے پیو. اور عزیزو توجہ کریے گا، بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جسے رسول اپنی بز میں جگہ دے، جسے رسول اپنی بز میں جگہ دے اسے آپ بھی اپنی بزم اور دل دونوں میں جگہ دیں. لیکن جسے رسول اپنی بزم سے نکال دے اسے آپ بھی اپنی بزم اور دل دونوں سے نکال دیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزو ابتدائی باتیں ہو رہی ہیں، مقدماتی باتیں ہو رہی ہیں. اگر آپ کی توجہات ہمارے ساتھ مبذول رہی، وعدہ کرتا ہوں کہ 9:30 بجے تک تقریر ختم ہو جائے گی. لیکن توجہ کا طالب ہوں. ابھی تو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، مقدماتی باتیں ہیں. اپنے آپ کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے گا. جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے اپنی فضیلت کو کم نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. یہاں ہر کوئی نہیں آتا ہے. یہاں بس وہی لوگ آتے ہیں جن کے شجر طیب و طاہر ہوتے ہیں، جن کے شجر پاک ہوتے ہیں. یہاں پر ہر کوئی نہیں آتا ہے، آنے کی جرات بھی نہیں کرتا ہے. اور پھر یہاں سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا ہے. یہاں سے ہمیں کیا نہیں ملتا ہے؟ یہاں سے ہمیں شجاعت ملتی ہے، یہاں سے ہمیں شہامت ملتی ہے، یہاں سے ہمیں اخلاق ملتا ہے، یہاں سے ہمیں کردار ملتا ہے، یہاں سے ہمیں دولت علم ملتی ہے، یہاں سے مال دنیا ملتا ہے، یہاں سے اولاد ملتی ہے، یہاں سے اولاد ملتی ہے. عزیزو کیا کچھ یہاں سے نہیں ملتا ہے؟ اور شاعر نے تو بڑے عجیب انداز میں کہہ دیا کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول. یہ سچ کسی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا. ارے جنت سے تو اچھا ہے عزا خان ہے شبیر، دشمن بھی اگر ہو تو نکالا نہیں جاتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے یہاں آنے والوں پر، لیکن ہر کوئی یہاں آ نہیں سکتا. یہاں آنے کے لیے شرط ہے. تو عزیزو جیسے پیغمبر اسلام چلے ویسے چلیں، جیسے اٹھیں ویسے اٹھیں، جیسے بیٹھیں ویسے بیٹھیں، جیسے سوئیں ویسے سوئیں، جیسے جگیں ویسے جگیں. آپ نے کہا قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رسول تو ہماری طرح چلتے تھے، رسول تو ہماری طرح اٹھتے تھے، رسول تو ہماری طرح بیٹھتے تھے، رسول تو ہماری طرح کھاتے تھے، رسول تو ہماری طرح پیتے تھے. تو عزیزو انہوں نے رسول کے چلنے کو دیکھا، کہہ دیا ہماری طرح، رسول کے اٹھنے کو دیکھا، کہہ دیا ہماری طرح، رسول کے سونے کو دیکھا، کہہ دیا ہماری طرح، رسول کے جگنے کو دیکھا، کہا ہماری طرح، رسول کے کھانے کو دیکھا، کہا ہماری طرح، رسول کے پینے کو دیکھا، کہا ہماری طرح. ہم نے کہا عجیب آدمی ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ رسول کا چلنا ہماری طرح، رسول کا اٹھنا ہماری طرح، رسول کا بیٹھنا ہماری طرح. ارے اگر ہمارا رسول چل کے بتاتا نہیں تو ہمیں صحیح چلنے کا طریقہ کیسے ملتا؟ رسول سونے کا طریقہ نہ بتاتے تو سونے کا طریقہ کیسے ملتا؟ اٹھنے کا طریقہ کیسے ملتا؟ بیٹھنے کا طریقہ کیسے ملتا؟ ارے یہ تو میرے رسول کا کمال تھا کہ جس چیز کو منہ لگا دیا حلال ہو گیا، جسے چھوڑ دیا وہ حرام ہو گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
कौन से रसूल हैं जिनकी विलादत की शब है? पैगंबर इस्लाम उस वक्त दुनिया में आए जब दुनिया जहल की तारीकियों में गर्क हो चुके थे। बहुत से लोग रसूल खुदा को कुरान में उम्मी की लफ्ज़ इस्तेमाल हुई तो कहते रसूल अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अजीज़ो जनाबे ईसा तो गहवारे से कहीं अब्दुल्ला तानियल किताब वजालनी नबिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, किताब अता की है, वो गहवारे से पढ़े। और जो सबसे अफजल रसूल उसे पढ़ना ना आए कैसे हो सकता है? अजीज़ो उम्मी इसलिए बने रहे ताकि दुनिया कल के दिन एतराज़ न करे कि फला के पास दर्स हासिल किया था। पैगंबर इस्लाम को खुदा दिखाना चाह रहा था कि मेरा नुमाइंदा है तो मेरी तरफ से इल्म लेकर गया है। अजीजों भला कैसे हो सकता है कि कायनात का अफजल तरीन रसूल उसे लिखना ना आए, उसे पढ़ना ना आए? तो अजीजों अब मसला यहाँ पर आकर रुका कि लोगों ने कहा जी आप तो रसूल खुदा की अजमत को कम कर देते हैं और अली की अजमत को बढ़ा देते हैं। एतराज होता है कि नहीं होता है? हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप हर जगह अली अली करते हैं। हम तो भाई हर जगह अली अली करते हैं। फर्श पे अली अली, अर्श पे अली अली, मस्जिद में अली अली, मेहराब में अली अली, हौज़े कौसर पर अली अली, सिरात पे अली अली, जन्नत में अली अली, मरने के वक्त अली अली, कब्र में अली अली, अजीजों मीज़ान के वक्त अली अली, फिजाओं में अली अली, खलाओं में अली अली, दरिया में अली अली, खुशकी पे अली अली। हम तो हर जगह अली अली करते हैं। का यही तो कमी है, आप रसूल रसूल नहीं करते बल्कि अली अली कर रहे हैं। हमने कहा दुनिया वालों सुनो, हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि जिस रसूल का अली इतना बाफजीलत है उस अली का रसूल कितना अफजल होगा, और जिस अली का रसूल इतना अफजल है तो उस रसूल का खुदा कितना अफजल होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जब बात मोहम्मद वाले, खुदा सलामत रखे जो मोहब्बत में आवाज़ें बुलंद हुआ करते हैं, जो नारे बुलंद होते हैं, खुदा उन दहनों को सलामत रखे, उस आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों को सलामत रखे, तमाम बलाओं से महफूज रखे। तो अजीज़ों अब जब रसूल की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है तो पहले पहचानना पड़ेगा कि रसूल की सीरत हमें मिलेगी कहाँ से। रसूल की सीरत है क्या चीज़? तो अजीज़ों हमने कहा कि अगर रसूल की सीरत को देखना है, समझना है तो उसके लिए तीन चीज़ें हैं। मासूम की तीन चीज़ों को जानना पड़ेगा। या तो फ़ेले रसूल को देखें, या कौले रसूल को देखें, या तकरीर रसूल को देखें। अजीज़ों थोड़ा सा फ़िक़ही बहस है, मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करूँगा ताकि बच्चा हमारा समझ जाए। कौले रसूल किसे कहते हैं? अगर रसूल खुदा ने कोई हदीस नकल की, कोई चीज़ कही, उसको कहते हैं कौले रसूल। जैसे रसूल ने कहा अना वालियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हूँ, इसको क्या कहते हैं? कौले रसूल। दूसरी चीज़ क्या है? फ़ेले रसूल। अगर रसूल खुदा कोई फ़ेल अंजाम देकर हमें बताएं, मसलन नमाज पढ़ के बताएं कि देखो नमाज इस तरीके से पढ़ी जाती है, हज करके बताएं कि देखो हज किस तरीके से अंजाम दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? फ़ेले रसूल। तकरीर रसूल क्या चीज़ है? तकरीर रसूल ये है, मैं एक मिसाल दे दूं कि शब्बीर भाई यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और उनके सामने चाय बिस्किट नाश्ता सब कुछ रखा, बच्चा आके खाने लगे। अगर शब्बीर भाई इस बच्चे को टोकते नहीं हैं, मना नहीं करते हैं, तो ये किस बात की अलामत है कि राजी है वो बच्चा खाए? ये राजी है कि वो बच्चा यहाँ पर बैठ के चाय नाश्ता करे। अजीजों अगर रसूल खुदा के सामने या किसी मासूम के सामने कोई फेल
अंजाम दे। कोई काम कर रहा है लेकिन न रसूल उसको टोके न रोके, यानी वो सही फेल अंजाम दे रहा। अगर उसको नहीं रोकते हैं, नहीं टोकते हैं, तो फिर ये फेल सही है। अजीजों, अब आइए तो पता चला तीन चीजें हैं रसूल की सीरत। एक है कौल रसूल, एक है फेल रसूल, एक है तकरीर रसूल। अजीजों, सीरत रसूल को देखना है, फेल रसूल को देखना है। ईद का दिन है, ईद का दिन है। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम हसनैन की उंगली पकड़े हुए जा रहे हैं। बच्चों ने कहा, नाना दूसरे बच्चे सवारियों पे जा रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं। फेले रसूल को देखिएगा अजीजों, फेले रसूल किसे कहते हैं? कहा, नाना हम पैदल चल रहे हैं, दूसरे बच्चे सवारियों पे बैठे हुए हैं। जैसे रसूल ने सुना मुस्कुराए, कहा बेटा तुम्हें भी सवारी चाहिए? कहा हाँ नाना। बस एक मरतबा रसूल खुदा बैठ गए, एक कांधे पे इमाम हसन को सवार किया, एक कांधे पे इमाम हुसैन को सवार किया, लेके चले। एक शख्स आगे बढ़ा, क्या या रसूल अल्लाह कितनी अच्छी सवारी है। रसूल ने कहा खामोश हो जाओ, रसूल ने कहा खामोश हो जाओ। अरे तुम्हारी निगाह सवारी पे है, अरे सवारों पे नहीं है। ये क्यों नहीं कहता सवार कितने अच्छे हैं? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों, दूसरा मरहला देखेंगे फेले रसूल का। पैगंबर इस्लाम मस्जिद में है, सजदे की हालत में है, मस्जिद नबवी है, बुजुर्ग तरीन मस्जिद, कायनात की सबसे अफजल मस्जिद, सबसे अफजल रसूल वो नमाज पढ़ा रहा है। एक मरतबा तीसरे दर्जे की इमामत मजमे को छेड़ती हुई गई। जैसे रसूल खुदा सजदे में गए, इमाम हुसैन जाकर नाना की पुष्ट पर बैठ गए। अब रसूल क्या कर रहे हैं? सजदे को तूल दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जैसे हुसैन नाना की पुष्ट पर आए, जनाबे जिब्राइल ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह खुदा कह रहा है तू भी मेरा, नमाज भी मेरी, मस्जिद भी मेरी, सजदा भी मेरा। जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए सजदे को तूल देते रहे, सजदे को तूल देते रहे। अजीजों, आप जो रसूल खुदा सजदे को तूल दे रहे हैं तो यह न समझिएगा सिर्फ रसूल खुदा सजदे में है, आदम भी सजदे में है, नूह भी सजदे में है, इब्राहिम भी सजदे में है, याकूब भी सजदे में है, अपने भी सजदे में है, पराए भी सजदे में है, शक वाले सजदे में है, ईमान वाले सजदे में है, हुसैन पुश्ते रसूल पर है। अब समझे शायर यहाँ पर क्या कहता है? अरे कांधे पे कभी बाप, कभी पुश्त पे बेटा, कांधे पे कभी बाप, कभी पुश्त पे बेटा। अरे हमने तो नबूवत पे इमामत ही को देखा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों, ये है फेले रसूल कि रसूल खुदा किसे इज्जत दे रहे हैं, कहां पर किसको अहमियत दे रहे हैं। लोग काली कमली की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, लोग रसूल की जुल्फों की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। हमने कहा किबला ये न देखें काली कमली के ऊपर सर न धुने, बल्कि ये देखें काली कमली के नीचे आया कौन, काली कमली के नीचे आया कौन। जुल्फों की तारीफ न करें बल्कि ये देखें जुल्फें किनके हाथों में गई, ये जुल्फें किनके हाथों में गई। अजीजों, आज अगर किसी के हाथ रसूल का बाल लग गया है तो उसी पे फख्र कर रहा है। अजीजों, हज पे गए, बाल मुड़ाना वाजिब था, रसूल ने बाल उतरवा दिए। कुछ लोग रसूल का बाल लेकर खुश हैं, लेकिन कुछ लोग रसूल की आल को लेकर खुश हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाल वाले और होते हैं, आल वाले और होते हैं। तो अजीजों, ये हो गया फेले रसूल। रसूल किस तरीके से फेल को अंजाम देकर बता रहे हैं। अजीजों, आज दुनिया क्या कह रही है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। क्यों? इसलिए कि पता है कि रसूल खुदा के बाद
इस्लाम को उसके रास्ते से हटाया गया, तलवार के जरिए फतूहात किए गए, लेकिन पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में रसूल खुदा की सीरत में आप मुझे दिखला दीजिए कि कभी भी रसूल खुदा ने किसी जंग में पहल की हो। रसूल खुदा ने किसी जंग में पहल की हो तो आप दिखलाएं, कोई मुअर्रिख, कोई तारीखदान लिख कर दिखलाए कि पैगंबर इस्लाम ने किसी के ऊपर जंग में पहल की हो। हाँ, जब पता चला कि फला हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है तो रसूल खुदा दिफा के लिए निकले हैं, रसूल खुदा दिफा के लिए निकले हैं, दिफा किया है, लेकिन जंग में कभी पहल नहीं किया है। लेकिन अजीजों, दुनिया कहती है कि नहीं, ये इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, लेकिन अजीजों, मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रसूल खुदा की सीरत देखें कि पैगंबर इस्लाम है, जादूगर कहा जा रहा है, साहिर कहा जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कूड़ा पैगंबर इस्लाम के ऊपर डाला जा रहा है। वाक़या सुना हुआ सिर्फ नतीजा देना चाह रहा हूँ कि पैगंबर इस्लाम गुजर रहे हैं, ज़ईफा है जो आपके ऊपर कूड़ा डाल रही है, घर का कचरा डाल रही है, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने रास्ता नहीं बदला। पैगंबर इस्लाम ने ना रास्ता बदला, ना उसने कूड़ा डालना छोड़ा। लेकिन जब एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा तो पैगंबर इस्लाम ने पूछा, अरे वो ज़ईफा जो रोज मेरे ऊपर कूड़ा डालती थी आज नजर नहीं आ रही है। लोगों ने कहा, या रसूल खुदा मरीज है। पैगंबर इस्लाम उसके घर पहुंचे, दक्कुल बाब किया, उसने पूछा कौन, अपना नाम बताया, घर के अंदर दाखिल हुए। एक मरतबा ज़ईफा ने कहा, मोहम्मद अब आए हो तुम मुझसे बदला लेने के लिए, जब मैं मरीज हूँ, जब मैं ज़ईफ हो गई हूँ, जब मैं नातवान हो गई हूँ, जब मैं कमज़ोर हो गई हूँ। पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा के कहा कि मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तेरी इयादत के लिए आया हूँ। बस जैसे उसने पैगंबर इस्लाम के अखलाक की बुलंदी को देखा, किरदार की बुलंदी को देखा, कहा क्या आपका मजहब यह सिखाता है, क्या आपका दीन यह सिखाता है कि अपने दुश्मनों की इयादत किया करे? कहा हाँ, हमारा दीन यही सिखाता है, हमारा मजहब यही सिखाता है। फौरन उसने हाथों को बढ़ाया, कहा फिर कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही हूँ। तो अजीजों, उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। मुझे यहाँ पर कहने दीजिए कि जब तक वो ज़ईफा पैगंबर इस्लाम को अपने जैसा बशर समझते रहे, पैगंबर इस्लाम के ऊपर कूड़ा फेंकती रहे, लेकिन जैसे ही उसने पैगंबर इस्लाम के किरदार की बुलंदी को देखा, अखलाक की बुलंदी को देखा, फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अजीजों, एक जुमला और कहता चलो, जो लोग कहते इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, मैं भी कहता हूँ तलवार के जोर पर फैला है, लेकिन लोहे की तलवार के जोर पर नहीं फैला है, बल्कि अखलाक की तलवार के जोर पर फैला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीजों, अब आप जब पैगंबर इस्लाम की सीरत को समझ चुके हैं, सुन्नत क्या है समझ चुके हैं, आखिरी बात और खत्म तकरीर मैं कहूँगा, या रसूल खुदा, आखिर आपकी सुन्नत मिले कहाँ से, हमें ये सीरत मिले कहाँ से? तो आइए देखें कहाँ से मिलेगी। तो हमने कहा या असहाब से ले लें, या अज़वाज से ले लें, या अहले बैत से ले लें। सीरत मिलने के तीन ही तरीके, कोई चौथा हो तो आप बताइए, कोई चौथा है तो आप बताइए। या तो असहाब से मिलेगी, या अज़वाज से मिलेगी, या तो अहले बैत बताएंगे। तो आपने कहा भाई असहाब से ले लेते हैं। हमने कहा जनाब, अगर असहाब से पैगंबर इस्लाम की सीरत लेंगे तो घर के बाहर की सीरत मिलेगी, घर के अंदर की सीरत नहीं मिलेगी। तो आपने कहा भाई फिर अज़वाज से ले लेते हैं। फिर हमने एतराज़ कर दिया कि भाई अज़वाज से घर के अंदर की सीरत मिलेगी, घर के बाहर की सीरत नहीं मिलेगी। तो फिर अजीजों, ले किससे? असहाब से ले तो घर के बाहर की सीरत मिलती है, अज़वाज से ले तो घर के अंदर की सीरत मिलती है। क्यों? इसलिए कि खुदा को पसंद नहीं है कि नबी की बीबी घर से बाहर निकले। खुदा को पसंद नहीं है
बाहर निकले। अब अगर कोई बीवी निकल जाए तो अपना अंजाम खुद समझे। अजीजों, अपना अंजाम खुद समझे। एक बात याद रखिएगा कि पैगंबर इस्लाम, बहुत से लोग ये बात साबित करना चाहते हैं कि पैगंबर इस्लाम के बदन से जिसका बदन मस हो जाए वो कभी उसका वो हिस्सा जहन्नम में नहीं जल सकता है। और उसके बाद ये इस्तेदलाल करते हैं कि फला का बदन मस हुआ है लिहाजा जहन्नम में नहीं जल सकते हैं। एक मर्द मोमिन ने कहा, सुने, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये एक मज़ाहिया बात है, ना कि कोई इल्मी इस्तेदलाल है, आपको हंसाने के लिए है सिर्फ। अजीजों, तो एक बुजुर्ग ने कहा, सुने, कुत्ता तो नजी से जन्नत में जाएगा कैसे? कहा, हुजूर, अल्लाह मियां काम ये करेंगे, उसकी खाल उतार के इन पे चढ़ा देंगे, इनकी खाल उस पे चढ़ा देंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमने कहा, भाई, असहाब से घर के बाहर की सीरत मिलती है, अज़वाज से घर के अंदर की सीरत मिलती है, और हमको चाहिए दोनों सीरत। तो फिर हमें करना क्या है? कहा, चले खुद रसूल खुदा से हाथ जोड़कर पूछें, या रसूल खुदा, आपने कोई अपना मरकज बनाया है, कोई अपना सेंटर बनाया है, कोई आपकी हेड ऑफिस है जहां से आपकी दोनों सीरतें मिलें? कहा, भाई, मैंने बारहा तुमको अपना हेड क्वार्टर दिखाया है, अपनी हेड ऑफिस दिखलाई है, कभी 6 महीना दरे ज़हरा पे खड़े होकर सलाम करके बताया, कभी चादर के अंदर जमा करके बताया। अजीजों, किस तरीके से पैगंबर इस्लाम आए, ए फातिमा, मुझे ज़ौक़ महसूस हो रहा है, मुझे ज़ौक़ महसूस हो रहा है, अपनी चादर दे दो, अपनी चादर दे दो। चादर इतनी छोटी थी कि जब जनाबे सैयदा सर ढकती थी पैर खुल जाते थे, पैर ढकती थी सर खुल जाता था, लेकिन उस चादर के अंदर पंजतने पाक इकट्ठा कैसे हुए? अजीजों, ये नूरानी चादर है, जिस तरीके से लाइट है, ये बिजली है, एक ही वक्त में 2 काम करती है। एसी चलाएं तो ठंडा करती है, हीटर चलाएं तो गर्मी अता करती है। ये चादर जनाबे सैयदा है, ये ज़र्फ देख के मजरूफ के साथ एक काम करती है। जब लोग ज्यादा होते हैं, चूंकि नूरानी मखलूक है, तो चादर खुद बखुद बढ़ जाया करती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आखिरी जुमले अजीजों, जनाबे सैयदा ने भेजना शुरू किया। इमाम हसन आए, इजाजत ली चादर के अंदर, इमाम हुसैन चादर के अंदर, मौला अली इजाजत लेते हैं चादर के अंदर। लेकिन एक बीबी आगे बढ़ी, उम्मे सलमा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी चादर में आ सकती हूँ? कहा, उम्मे सलमा, अंते अलल खैर, तुम खैर पे तो हो, मगर चादर के अंदर नहीं आ सकती हो। तो अजीजों, जब खैर वाली बीबी चादर के अंदर नहीं आ सकती है, अहले बैत में नहीं दाखिल हो सकती है, तो वो शर वाली बीबियां कैसे दाखिल होंगी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, भेजना शुरू किया। इमाम हुसैन आके इजाजत तलब कर रहे हैं। मैं कहूँगा, मौला हुसैन, आपको क्या हो गया? कल जब नाना मस्जिद में थे, सजदे की हालत में थे, पुष्प पे जाकर बड़े आराम से बैठ गए, इजाजत नहीं तलब किया, यहाँ कर इजाजत तलब कर रहे हैं। खुद जनाबे जिब्राइल को देखिए कि वो भी आके इजाजत तलब कर रहे हैं, इजाजत तलब कर रहे हैं। फितरुस को लेकर आए थे, गहवारे हुसैन से मस किया था, इजाजत नहीं ली थी अल्लाह मियां से कि जाएं कि ना जाएं, उसको ले जाएं कि ना ले जाएं, लेकिन चादर ज़हरा के करीब आकर इजाजत ले रहे हैं। आखिर वजह क्या है? जनाबे जिब्राइल के, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तीसरे दर्जे की इमामत से पूछो। कल मस्जिद में गए थे, इजाजत नहीं लिए थे, आज यहाँ पर इजाजत ले रहे हैं। हमने हाथों को जोड़ा, ऐ जनाबे जिब्राइल, ऐ इमाम हुसैन, आप दोनों बताएं, वहाँ इजाजत नहीं ली, यहाँ पर इजाजत ले रहे हैं। शायद जवाब दें कि रसूल की मस्जिद और है, बतूल की चादर और है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा खुदावंद मताल से दुआ है कि बारे अल्लाह
हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। वो मोमिनीन जिन लोगों ने इतनी जहमत की है, बार अल्लाह उनके खुलूस को कबूल फरमा। तमाम हाज़रीन महफिल और वो लोग जिन लोगों ने इस महफिल में हिस्सा लिया है, शिरकत किया, बार अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा। बार अल्लाह कभी भी मुफलिसी और गरीबी उनके करीब ना आने पाए। बार अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तमाम मोमिनीन, तमाम हाज़रीन महफिल के क़ुलूब को शाद व मुनव्वर फरमा। बार अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वबाई मरज़ कोरोना को जल्द से जल्द नीस्त व नाबूद फरमा। बार अल्लाह वो हुक्मरान जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, तमाम जालिम हुक्मरान को नीस्त व नाबूद फरमा, उनकी हुकूमतों को सरनगू फरमा। बार अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारे दरमियान अगर कोई मरीज़ है, ख़ास तौर से शब्बीर भाई, शमीम भाई, शाह आलम साहब, इन तमाम मोमिनीन को जल्द से जल्द शफाए कामिल व आजिल अता फरमा। बार अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो लोग बेरोज़गार, उन्हें बरसर रोज़गार बना, जो लोग बरसर रोज़गार उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा। बार अल्लाह इस दुनिया में हमें ज़ियारत क़ब्र इमाम हुसैन, मरने के बाद शफ़ात इमाम हुसैन नसीब फरमा। बार अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मुंतक़िम खून इमाम हुसैन, इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।